بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ ناظرین، میں محمد الطاف احمد اے بی نیوز چینل میں آپ کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیاں۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کی یوم پیدائش کے موقع پر سرکاری دواخانہ کریم نگر میں طعام کا انتظام۔ کریم نگر میں فیور سروے کا انعقاد، 5 دنوں میں سروے مکمل کرنے کی ہدایت۔ دلت بندھو اسکیم کے تحت ہر اسمبلی حلقے سے 100 افراد کا انتخاب۔ سڑک حادثے میں ہلاک ہونے والی کی بیوہ کو 2 لاکھ روپے کا چیک، کوپولا ایشور۔ تلنگانہ ملک کی واحد قابل تقلید ریاست، کوپولا ایشور کا بیان۔ بنڈی سنجے کی گرفتاری کے معاملے میں پولیس عہدیداروں کو لوک سبھا پریویلیج کمیٹی کی نوٹس۔ اتوار، پیر اور منگل کو تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بارش کی پیش قیاسی۔ تلنگانہ میں ایک بار پھر زمینوں کی قیمتوں میں اضافہ متوقع۔ گھر گھر سروے کے تحت 1 کروڑ ہوم آئسولیشن کٹس کی تقسیم کا منصوبہ۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کی فیس داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع۔ پریورتن مورچہ سے مجلس کا اشتراک۔ دنیا تباہی کے دہانے پر، جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ گوٹیرس۔ امریکی تاریخ میں بنگلہ دیشی نژاد پہلی مسلم خاتون جج نامزد۔ تو آئیے اب خبریں تفصیل سے۔ محمد وسیم الدین احمد، جنرل سیکرٹری آل انڈیا فارورڈ بلاک کی اطلاع کے باوجود نیتا جی سبھاش چندر بوس کی 125ویں یوم پیدائش کے موقع پر سرکاری دواخانہ کریم نگر میں طعام کا نظم کیا گیا۔ تقریباً 300 افراد نے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا۔ واضح رہے کہ آزاد ہند فوج کے بانی و نیز آل انڈیا فارورڈ بلاک کے فاؤنڈر ممبر کے علاوہ سبھاش چندر بوس کا شمار مجاہدین آزادی میں بھی ہوتا ہے کہ یوم پیدائش کے موقع پر مختلف پروگرامز کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر بروز ہفتہ سرکاری دواخانے میں یہ ایک پروگرام بھی منعقد کیا گیا۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ ضلع میں کیے جا رہے گھر گھر سروے کا ضلع کلکٹر نے جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ عہدیداران کو ہدایت دی۔ بروز ہفتہ شہر کریم نگر کے منکمہ توٹا، کشمیر گڈھا ریتو بازار میں ANM اور آشا ورکرز کے ذریعے کیے جا رہے سروے کے موقع پر ضلع کلکٹر RV کنن نے مکینوں سے بات چیت کی اور کووڈ ٹیکے کے دونوں خوراک لے چکے افراد کو بھی لازمی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی صلاح دی۔ کشمیر گڈھے میں کرونا جانچ کے بعد متاثرہ خاتون سے ضلع کلکٹر نے بات کی، علاوہ کٹ کی فراہمی و ضروری ہدایات پیش کرتے ہوئے خاتون کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ ضلع کلکٹر نے عوام کو لازمی طور پر ماسک کے استعمال، سماجی دوری بنائے رکھنے کا مشورہ دیا۔ ANM، آشا ورکر، میونسپل سواشکتی اداروں کے اراکین، RP کے اشتراک سے تشکیل کردہ وفد کو فرض شناسی کے ساتھ خدمات کی انجام دہی کی ضلع کلکٹر نے ہدایت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سروے کو 5 دنوں میں مکمل کر لیا جائے۔ اس موقع پر ضلع عہدیدار برائے صحت و طبابت ڈاکٹر جویریہ، میونسپل کمشنر اسلاوت کے علاوہ طبی عملہ و دیگر موجود تھے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ تلنگانہ ریاست میں دلت بندھو اسکیم کے تحت ہر اسمبلی حلقے سے 100 استفادہ کنندگان کا انتخاب۔ ریاستی وزیر برائے سماجی بہبود کوپولا ایشور کا بیان۔ بروز ہفتہ دلت بندھو اسکیم کی عمل آوری کے متعلقہ امور پر ریاستی وزیر برائے سماجی بہبود کوپولا ایشور نے ضلع کریم نگر سے تمام اضلاع کے کلکٹرز کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس ویڈیو کانفرنس میں حیدرآباد سے چیف سیکرٹری سومیش کمار، مڈچل ملکاجگری سے SC کارپوریشن چیئرمین بنڈی سرینیواس نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر کوپولا ایشور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دلتوں کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ KCR نے دلت بندھو اسکیم کو متعارف کروایا۔ واضح رہے کہ اس اسکیم کا حیدرآباد اسمبلی حلقے سے بحیثیت پائلٹ پروجیکٹ آغاز کیا گیا۔ حال ہی میں منعقدہ کیبنٹ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے دلت بندھو اسکیم کی ریاست بھر میں عمل آوری کی ہدایت بھی دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق ہر اسمبلی حلقے سے پہلے مرحلے کے تیار کردہ منصوبے کے تحت 100 دلت افراد کو منتخب کیا جائے۔
उन्होंने मजीद कहा कि मकामी MLA, कलेक्टर्स, ओहदेदारान इजलास का इनेकाद करते हुए अंदरून 5 फरवरी अहल दलितों की फहरिस्त तैयार करें और 7 मार्च से कबल मुंतखब यूनिटों की ग्राउंडिंग मुकम्मल की जाए। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्तफीद अफराद के खाते में 10 लाख रकम की जमा की जाएगी, जिसके मिन जुमला 10,000 रुपये मुस्तफीद फर्द के इंश्योरेंस के लिए होंगे। इस इजलास में सेक्रेटरी रामाकृष्णा, करीमनगर जिला कलेक्टर RV कन्नन, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मकामी गरिमा अग्रवाल, जिले के कलेक्टर व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि जगत्याल जिले के गोलापल्ली मंडल के मौजे रतनूर के साकिन P सत्यनारायण की एक हादसे में मौत वाक़ हो गई थी। रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर व फलाह बहबूद कोप्पला ईश्वर ने आज महलूक के घर पहुंचकर पार्टी की जानिब से मंजूर शुदा 2 लाख रुपये इंश्योरेंस की रकम का चेक मरहूम की बेवा के हवाले किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि TRS पार्टी हमेशा अपने हम वतनों की खुशी व गम में शामिल रहेगी। इसी दौरान एक और खबर की जानिब के जगत्याल के धर्मपुरी से वाबस्ता कांग्रेस और BJP के नौजवानान व खवातीन की रियासती वजीर कोप्पला ईश्वर की मौजूदगी में TRS में शमूलियत। तफसीलात की बमूजिब जगत्याल जिले के मंडल धर्मपुरी के मौजे जेना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस और BJP के कायदीन, जिसमें नौजवानों और खवातीन की बड़ी तादाद थी, ने आज रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर व फलाह बहबूद कोप्पला ईश्वर के कैंप ऑफिस करीमनगर पहुंचकर TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर कोप्पला ईश्वर ने उन तमाम का पार्टी में खैर मकदम किया और पार्टी अराकीन से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन है। वनीज तेलंगाना की तरक्याती स्कीमात को देखकर नौजवान जौक दर जौक TRS में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। चूंकि हुकूमत हर एक की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही है, इस वक्त तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जिसकी फलाही स्कीमात के मुशाहिदे के लिए मुल्क के तूल अर्ज से मुख्तलिफ वफूद तेलंगाना में आकर मुशाहिदा कर रहे हैं। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि बंडी संजय की गिरफ्तारी के मामले में चीफ सेक्रेटरी समेत आला पुलिस ओहदेदारों को लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी की नोटिस। तफसीलात की बमूजिब लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने BJP के रियासती सदर व रुकन पार्लियामान करीमनगर बंडी संजय की गिरफ्तारी के मामले में तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी समेत कई ओहदेदारों को नोटिस जारी की है और उन तमाम को 3 फरवरी को कमेटी के रूबरू हाजिर होने की हिदायत भी दी है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी कमेटी ने रियासत के DGP महेंद्र रेड्डी, करीमनगर के पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण, जगत्याल DSP प्रकाश और करीमनगर के इंस्पेक्टर पुलिस को लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने नोटिस जारी की थी। इसी दौरान एक और खबर की जानिब के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की तल्ला के बमूजिब तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात बशमूल हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक गरज व चमक के साथ बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ज़राए के मुताबिक हैदराबाद और तेलंगाना के चंद अजला में इतवार, पीर और मंगल को गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के कवी इम्कानात हैं। रियासत के कई अजला में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है और रात के औकात कम दर्जे हरारत की वजह से सर्दी महसूस की जा रही है। मौसम की तब्दीली के पेश नज़र आलिमुद्दीन की तल्ला के मुताबिक घर के बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि आइए आपको ले चलते हैं एक अहम खबर की तरफ कि तेलंगाना में ज़रई और गैर ज़रई अराजियात और जायदादों की बाजारी कीमतों मार्केट प्राइसेस के अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस में फिर एक बार इजाफा मुतवक्को। तफसीलात के मुताबिक महकमे स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन की जानिब से ज़मीनों की बाजारी कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकामात जारी करते हुए महकमे स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन को जमीनों की मार्केट कीमतों पर इजाफे का जायजा लेने की इजाजत दी है। वाज़ेह है कि 6 महीने कबल ही रियासत में ज़रई और गैर ज़रई अराजियात और जायदादों की मार्केट कीमतों और रजिस्ट्रेशन की शरहों में इजाफा किया गया था और अब 6 माह बाद दोबारा कीमतों में इजाफे का फैसला किया जा रहा है। साल 2013 के बाद हुकूमत की जानिब से अराजियात की कीमतों में पहली मरतबा जुलाई 2021 में इजाफा किया गया था और अब दूसरी मरतबा कीमतों में 50% इजाफे का इम्कान है। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि तेलंगाना में घर घर सर्वे के दौरान 45,000 से जायद अफराद में कोरोना वायरस के मुश्तबा अलामात पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक जुमा के रोज रियासत भर में हुकूमत के
कारिंदों ने बुखार, खांसी, सर्दी की जांच का अमल शुरू किया है। ताहम इसी दौरान 45,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना के मुश्तबा अलामात पाए गए। इन तमाम को 5 दिनों के दवाइयों के किट हवाले करते हुए घर में अलग थलग रहने का मशवरा भी दिया गया। इसी दौरान वजीर सेहत हरीश राव ने आज सिद्दीपेट जिले में जारी फीवर सर्वे के काम का मुआयना किया। उन्होंने अपने महकमे के अहदेदारों के साथ जिले के वार्ड नंबर 37 में घर घर पहुंचकर इस सर्वे के काम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने अवाम में कोरोना की रोकथाम के सिलसिले में बेदारी पैदा की और कहा कि बुखार, खांसी और दीगर अलामात पर अवाम चौकसी इख्तियार करें और फिलफौर अपना मुआयना करवाएं। वाज़ेह है कि यह सर्वे रियासत भर में 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम को यकीनी बनाने के इक़दाम कर रही है। सर्वे के जरिए कोरोना मामलात का पता चलाया जा रहा है। इसी तरह एक और खबर की जानिब कि तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जारिया साल इंटर साल अव्वल और साल दुव्वम के इम्तिहानात की फीस दाखिल करने की तारीख में तौसी की गई है। तालीमी इदारों को तातीलात के पेश नज़र यह फैसला किया गया। फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 फरवरी मुकर्रर है, जबकि 200 रुपये जुर्माने के साथ 10 फरवरी, 1000 रुपये जुर्माने के साथ 17 फरवरी और 2000 रुपये जुर्माने के साथ 24 फरवरी तक भी फीस दाखिल की जा सकती है। इसी तरह एक और खबर की जानिब कि हफ्ता 22 जनवरी को प्रवर्तन मोर्चा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने प्रेस रिपोर्टर्स को मुखातिब करते हुए उनके इस्तिफसारात के जवाब दिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अवैसी इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। तो ये 4 अहम बातें मुझे आप तक बताना था, आप तक पहुंचाना था। अब मैं माइक देता हूं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, मैं माइक देता हूं जनाब श्री वामन मिश्राम साहब को, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वो आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि दुनिया तसादुम के दहाने पर है। गुटेरेस, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया एक नई किस्म के नर्म तसादुम के दहाने पर है जो सर्द जंग से भी ज्यादा बदतरीन है। मिस्टर गुटेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में 2022 के लिए अपनी तरजीहात पेश करते हुए दुनिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में 5 इश्यूज उठाए। अपनी प्रेजेंटेशन के बाद प्रेस ब्रीफिंग में जब उनसे पूछा गया कि क्या दुनिया दूसरी सर्द जंग के दहाने पर है, तो उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया दूसरी सर्द जंग के दहाने पर नहीं बल्कि एक बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। मैं उसे सर्द जंग नहीं कहूंगा, चूंकि सर्द जंग के कुछ उसूल थे, ये 2 ग्रोहों के दरमियान थी। उन्होंने मजीद कहा कि सर्द जंग मौजूद के बारे में पेशन गोई की एक खास सतह थी, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा अफरा तफरी का शिकार हैं। हमारे पास बहरान से निपटने के लिए कोई औजार नहीं है। दरहकीकत हम एक खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा एक मुस्लिम बांग्लादेशी खातून को फेडरल जज के ओहदे पर नामजद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज मुल्क की तारीख में पहली बार एक बांग्लादेशी मुस्लिम खातून को विफाकी जज की हैसियत से नामजद किया है। बताया जाता है कि यह उनकी इंतजामिया की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें विफाकी अदालतों को मुतनव्वो शक्ल दी जाती है। नुसरत जहां चौधरी नामी यह खातून अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन अलिनाई की लीगल डायरेक्टर हैं और उन्हें सदर बाइडन ने अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बराए ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के लिए नामजद किया है। अगर अमेरिकी सेनेट की जानिब से इनकी नामजदगी को मंजूरी दी जाती है तो बतौर फेडरल जज फराइज अंजाम देने वाली पहली मुस्लिम खातून और बांग्लादेशी नजाद अमेरिकी खातून होंगी। आखिर में
हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज लब लहजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद खबरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। वाज़ेह रहे कि हमारा कमेंट बॉक्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स के लिए हमेशा खुला रहेगा और हम उन तमाम अहबाब के ममनून व मशकूर भी हैं कि जो वक्तन फ़वक्तन कमेंट बॉक्स के जरिए हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।